अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 AS 11 क्या बोलता है? द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये क्या होता है? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Objective: an enterprise may carry on activities involving foreign exchange in two ways. Firstly, it may have transactions in foreign currency, and secondly, it may have foreign operation. For these purposes, transaction must be expressed in the enterprise's reporting currency, and the financial statement of foreign operation must be translated into the enterprise reporting currency. The principal issues in the accounting for foreign currency transactions and foreign operations are to decide which exchange rate to use and how to recognize in the financial statement the financial effect of changes in the exchange rate. किधर किधर AS11 लगता है ना। AS11 deals with accounting for transaction in foreign currency, translating financial statements of foreign operations to reporting currency, and accounting for foreign currency transactions in the nature of forward exchange contracts. The standard, however, does not cover the following issues. It does not specify the currency in which an enterprise should present its financial statement. Restatement of an enterprise financial statement from its reporting currency into another currency. Presentation in the cash flow statement of cash flow arising from transactions in foreign currency and transactions of cash flows of a foreign operations, and exchange difference arising from currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to the इंटरेस्ट कॉस्ट। एक्चुअली इसमें 3 डेट इम्पॉर्टेंट है। पहला, जिस टाइम पे मैंने कोई एसेट या फिर कोई ट्रांजैक्शन किया। दूसरा, जो ईयर एंड है मतलब 31 मार्च। और तीसरा और आखिरी, जिस दिन मैंने उसका पेमेंट किया है। ये जो फॉरेन करेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये चेंज होता रहता है करेंसी का वैल्यू, तो इसलिए मैंने जब परचेस किया है और जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस टाइम का जो रेट का डिफरेंस है उसी को ट्रीटमेंट करना होगा, और वही ट्रीटमेंट होगा AS11 के अकॉर्डिंग। तो इलस्ट्रेशन 7, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, Zeds Limited, an e-commerce firm, entered into a foreign currency transactions relating to fees for technical service and paid to a Lucas Limited, an Atlanta-based organization in the USA. The transactions was for $24,000, which was entered into on 7/12/2021. The payment for the same was made on 20 May 22. Given that the exchange rate are on 7 December 21, $1 is equal to 68.80 rupee. On 1st January 2021, $1 is equal to 68.95 on 95 rupees. On 31st March 2022, $1 is equal to 70.45. On 20th May 22, $1 is equal to 71.50. इधर पे याद रखना 3 डेट मेन है। पहला, मैंने जब एसेट को परचेस किया या फिर जो ट्रांजैक्शन हुआ है पहला वो डेट, मतलब ये जो $24,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है 7 दिसंबर 2021, इस दिन का जो डॉलर का रेट है वो लेना पड़ेगा, मतलब 68.80। ये क्रूशियल है। और जो ईयर एंड 31 मार्च 22 वो वाला रेट इम्पॉर्टेंट है। और जो पेमेंट, द पेमेंट ऑफ फॉर द सेम वाज मेड ऑन 20 मई 22, ये वाला रेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब 71.50। इधर ये जो 1 जनवरी का रेट है ये इरेलीवेंट है। Ascertain the amount at which the transactions would get recognized in the books, and calculate the amount of foreign exchange gain or loss to be recorded in the financial statement for the year 21-22 and 22-23। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, एज पर AS11 ए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी by applying to the
foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transactions. तो पहला चीज़ वो $24,000 का जो उस दिन का रुपी का रेट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा $1 इज इक्वल टू 68.80 इंटू $24,000 करोगे तो तुम्हारा इधर पे आ जाएगा 16,51,200। उसके बाद जो ईयर एंड का होगा मतलब 31 मार्च 22 में होगा आउटस्टैंडिंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बोल के $24,000 इंटू उस टाइम का जो रेट था 70.45 रुपीज़ को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 16,90,800। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा एक्सचेंज लॉस। जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन किया है उससे अगर वैल्यू तुम्हारा ईयर एंड पे बढ़ जाता है तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, अगर वो कम हो जाता है तो तुम्हारा एक्सचेंज प्रॉफिट होगा। इस केस में 68.80 से लेके 70.45 तक चला गया, मतलब ये तुम्हारा लॉस हो गया, तुमको एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है वो देना पड़ेगा। तो एक्सचेंज लॉस टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ PL 16,90,800 minus 16,51,200 equals to 39,600 for 22-23। अब क्या हुआ 22-23 में 20 मई को मैंने पेमेंट किया है और पेमेंट जब किया है तब रेट हो गया है 71.50, मतलब 70.45 था वो फिर से इंक्रीज़ होके 71.50 हो गया है। ये जो डिफरेंस होगा वो भी लॉस भी PL पे जाएगा। तो पहले करना होगा क्या, ऑन 20 मई 22 पे आउटस्टैंडिंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग द एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू 71.50, दैट इज 24,000 इंटू 71.50 इक्वल्स टू 17,16,000। सो therefore exchange loss on settlement to be charged to the statement of profit and loss equals to 17,16,000 minus 16,90,800 equals to 25,200. Illustration 8. Subhas Limited purchased a machine costing rupees 216 lakhs on 1st April 21 and the same was fully financed by foreign currency loan $, पे दिया हुआ है, payable in 3 annual equal installment. Exchange rate were $1 equals to 67.50 and 70.45 as on 1st April 21 and 31st March 22 respectively। मतलब जब लोन लिया है और जब ईयर एंड होगा उसका रेट बता दिया है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31st March 22। द इंटायर डिफरेंस इन foreign exchange has been capitalized. Advise how the exchange loss and gain should be accounted for by the company। तो पहले तो $, में कितना होता है उसको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन्स इन $, तो इंडियन करेंसी में था 216 लाख और जो 1 अप्रैल 21 पे रेट्स था डॉलर का $1 इक्वल्स टू 67.50। तो इसको मेरा डॉलर में कितना अमाउंट था तो इधर पे यही किया है, कॉस्ट ऑफ मशीन्स इन $, इक्वल्स टू 216 लाख डिवाइडेड बाई 67.50 इक्वल्स टू $3,20,000। और जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। सो एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 3,20,000 इंटू ईयर एंड पे था रेट कितना हो गया 70.45 माइनस 67.50 इक्वल्स टू 9,44,000। और ये जो पूरा लॉस है ये स्टेटमेंट ऑफ PL पे चार्ज होगा। दिस एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग रुपीज़ 9,44,000 शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।